दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 243 जी एंड 243 एच। तो ठीक है, चलें स्टार्ट करें। 243 जी Constitution's Article 243 G says powers, authority and responsibilities of panchayats subject to the provisions of this constitution. Subject to the provisions of this constitution, the legislature of a state may by law endow the panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government, and such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibilities upon panchayats at the appropriate level, subject to such conditions as may be specified therein with respect to: Number A, the preparation of the plans for economic development and social justice. Number A, the preparation of plans for economic development and social justice. Number B, the implementation of the schemes for economic development and social justice as may be entrusted to them, including those in relation to the matters listed in the 11th schedule. क्या कहा जा रहा है? नंबर ए, द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस. बी, द implementation of schemes for economic development and social justice as may be entrusted to them, the including those in relation to the matters listed in the 11th schedule. 243H 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 says powers to impose taxes by and funds of the panchayats. वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्तीय आयोग का गठन। ये मैं पढ़ूंगी कल, तो ठीक है, अभी मैं पढ़ रही हूँ 243H. Powers to impose taxes by and funds of the panchayats. The legislature of a state may by law: Number A, authorize a panchayat to levy, collect and appropriate such taxes, duties, tolls and fees in accordance with such a produce okay. Number A, authorize a panchayat to levy, collect and appropriate such taxes, duties, tolls and fees in accordance with such procedure and subject to such limits. Number B, assign to a panchayat such taxes, duties, tolls and fees levied and collected by the state government for such purposes and subject to such conditions and limited such a conditions to limits. Number C, provide for making such grants in aid to panchayats from the consolidated fund of the state. And number D, provide for constitution of such funds for crediting all monies received respectively by or on behalf of the panchayats, and also for the withdrawal of such monies therefrom, so may be specified in the law.
तो अब मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ क्या कहा जा रहा है। अनुच्छेद 243 छा, अनुच्छेद 243 छा यानी अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा। क्या कहा जा रहा है कि संविधान के जो उपबंध हैं उनके अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल, किसी राज्य का जो विधानमंडल है वो विधि के द्वारा, कानून के द्वारा यानी पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। स्वायत्त शासन यानी उसके अंदर सरकार की कोई जो वहाँ का जो राज्य का विधानमंडल है उसकी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। वो स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व तो न्यायगत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि जो भी विधानमंडल होता है किसी राज्य का तो वो क्या करेगा, उनको स्वायत्तता प्रदान करेगा क्योंकि उसके अंदर दखलंदाजी नहीं करेगा और उनको जो भी सहायता है, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए विधानमंडल की जो सरकार है उस राज्य की सरकार के द्वारा अपने राज्य के अंदर पंचायतों को। तो ये बात ये अनुच्छेद कह रहा है। नंबर का आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना क्या है, इसके संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व तो न्याय संगत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे। ये कौन कौन से उपबंध किए जा सकेंगे? नंबर 1 आर्थिक विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। नंबर खा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को जो उन्हें सौंपी जाएं जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में कार्यान्वित करना। तो ये इस अनुच्छेद के माध्यम से ये दो बातों पे, दो का और खा के बारे में बात की जा रही है कि कैसे उन स्कीमों को 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है कार्यान्वित करना है। तो उसके बारे में बताया जा रहा है। अनुच्छेद 243 जा यानी अनुच्छेद 243 एच जो है 243 जा पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। पंचायतों के द्वारा जो कर अधिरोपित किए जाते हैं और उनकी जो निधियां, फंड्स के बारे में बात की जा रही है। किसी राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा नंबर का ऐसे कर, शुल्क, पथ कर और फीसें उद्ग्रहित, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत कर सकेगा। क्या कहा जा रहा है? नंबर का ऐसे कर, शुल्क, पथ कर जो भी टोल टैक्स होते हैं और फीसें उद्ग्रहित, संग्रहित, विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत कर सकेगा। नंबर खा राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित ऐसे कर, शुल्क, पथ कर और फीसें किसी पंचायत को ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए समुन्दिष्ट कर सकेगा। नंबर गा राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए ऐसी सहायता अनुदान देने के लिए
राज्य की संचित निधि में से, जो राज्य की जो संचित निधि होती है, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, तो उसमें से पंचायतों के लिए ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा कौन? विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल। ये राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा। और घ, पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकलवाने के लिए भी उपबंध कर सकेगा, जो विधि में निर्दिष्ट किए जाएं। तो ये सब कार्य किसका है? विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल का। क्योंकि राज्य सरकार जो होती है वही अपनी पंचायतों को मजबूत करती है और अपने जो स्टेट का जो फंड होता है उसमें से उनको धन देती है, अनुदान देती है, ताकि पंचायती व्यवस्था और मजबूत हो सके। राज्यों में जो पंचायत सिस्टम है और मजबूती से काम करे, वहाँ पे आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो सके, स्त्रियों, बालकों, वृद्ध, महिलाओं सबका विकास हो जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे। क्योंकि हमारे पे जो पंचायती राज सिस्टम है वो त्रिस्तरीय प्रणाली है, जिला, ब्लॉक और ग्राम लेवल पे। तो वो सरकार की सबसे छोटी इकाई है, वहीं से विकास शुरू होता है निचले लेवल पे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मैं बात करूँगी अनुच्छेद 243 आई के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।